First of all, let us try to understand the importance of this subject, and then I will tell you why to read this subject, why to importance of this subject. Then afterwards, we will start the discussion of this subject. ठीक है? देखो, हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, in order to keep our body healthy, we go to gym, we take different type of nutritions, and we do all type of things, but at the same time we don't do anything in order to keep our brain healthy. My brain also needs some exercise. My brain also needs some exercise in order to react to different type of situations. Suppose करो आज आप लोग 8th स्टैंडर्ड में हो, कल दिन आप में से कुछ लोग जाते हैं और एक किसी बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं, या ठीक है, आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे जाते हो, या यू गो टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आप आईएएस पीसीएस वगैरह बनते हो, आईएएस आईपीएस आईएफएस आप बनते हो, या यू वर्क इन ए मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और यू वर्क इन ए government company. You can work at different type of places, so there you will have different type of situation. उस situation की problem तो आप अपने ability से ढूंढ लोगे, because that is why you are working there, because you have that ability. But how to react in that situation, that toughness, that mental toughness is being provided by this subject, which is called as mental ability. For example, let me give you a very practical example which happened two days back, which happened rather, which was happening even today also. आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि वी दिस वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेयर वी आर लिविंग, that has been affected by one of the most severe cyclones in the history. After 21 years, after 23 years, this cyclone, this type of severe cyclone has occurred. Last time when this cyclone had occurred, even I was a kid, and that time a cyclone of such a magnitude occurred in the eastern part of India, and a place called Paradeep was badly devastated by that cyclone. Okay, ठीक है, cyclone आया, अच्छी बात है, आया गया, लेकिन in this cyclone what happened, आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज में या देखा होगा न्यूज में, there were some persons, some 273 persons who were stuck in the middle of the sea. Actually, what happened, they were working for Oil and Natural Gas Corporation of India, that is ONGC. एंड ओएनजीसी का एक प्लांट है, ओएनजीसी का एक एक्सप्लोरेशन होता है, that is called as Bombay High. Now what happened when this cyclone occurred, nobody expected that its effect will be so much on Mumbai, but ठीक है, अब effect आया. That was the situation. Now in this situation, in order to save the life of those 273 or 277 people, whatever the exact number is, perhaps it was 273 only, it was a very Herculean task how to save them. So that toughness, that decision making, Indian Navy came to our rescue. Indian Navy started its operation since last night, and they never cared for whatever weather was there. In between though that extreme weather condition, the Indian Navy fought, and till the last news came, till I saw the last news, they had saved some 180 persons. अभी तो शायद अब तक शायद उन लोगों ने सभी लोगों को बचा भी लिया होगा. So that the capability to go in that, to fight with the weather, to go in that situation, to take each and everyone out, that is a part of the Navy's training. But the mental toughness, वो जो मेंटल टफनेस थी, वो जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर थी, जो जो नेवी के एडमिरल ने जो डिसीजन लिया कि हाँ भाई वेस्टर्न कमांड विल गो, वेस्टर्न कमांड विल गो, वेस्टर्न कमांड विल सेव द पीपल. आईएनएस कोची एंड आईएनएस कोलकाता को जो वहां पे डिप्लॉय किया गया इन ऑर्डर टू सेव द पीपल, दैट डिसीजन मेकिंग इज ए पार्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी. That decision making is a part of mental ability. That is why this subject is important.
एक और एग्जांपल सुनो। मान लो आप लोग डिफेंस, आप लोग जो है आगे जाके कुछ लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो करके एक डिपार्टमेंट होता है दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है सर। इसमें क्या होता है कि वी ट्राई टू इंटरसेप्ट द कन्वर्सेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। उनकी कन्वर्सेशन को हम ट्रैप करते हैं, उनकी कन्वर्सेशन को दैट इज इन ए कोडेड लैंग्वेज वी ट्राई टू डिकोड इट एंड देन we try our level best that they don't harm the that they can't harm our country. So that ability to decode the conversation, that ability to act in that situation is being provided by this subject, which is called as mental ability. एक और एग्जांपल सुनो। आपने सुना होगा कि हमारे देश में कई सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑफ देम आर कॉल्ड एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। One of such college is in Ahmedabad also, which is named as IIMA or IIM Ahmedabad. ठीक है सर। Now, in order to qualify that entrance exam of that paper, of that college, a very important role is played by a subject which is called as mental ability. और सुनो, यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, आफ्टर 2 years आप लोग 10th में जाओगे, देयर यू विल बी अपियरिंग फॉर NTSC एग्जाम and in that NTSC exam the 50% weightage is of this chapter, is of this topic, which is called as mental ability. So these are the tangible and intangible benefits, and one of the most important benefit is my brain's exercise. क्योंकि भाई हाथ के लिए भाई, in order to make my shoulders strong, मैं I can pull some weight and I can do those type of exercises fine. But what about how to make my mind strong, yaar? In order to make my mind stronger, I will go with the subject which is called as mental ability. So basically, this subject is your mind's exercise. आपके दिमाग की जो एक्सरसाइज है वो हम करते हैं, और जिस सब्जेक्ट के थ्रू हम करते हैं उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं मेंटल एबिलिटी। बात समझ में आ गई? इसलिए हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी। हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं, अब दूसरी चीज ये, सर व्हाई आई एम स्टडिंग दिस सब्जेक्ट एट सच एन अर्ली स्टेज। 10th स्टैंडर्ड तो बाद में है, ग्रेजुएशन भी बाद में होगा। भाई ग्रेजुएशन के बाद ही ना मैं MBA करूंगा। या आपने बोला कि सर आई इफ आई गो टू सम डिफरेंट कंपनीज और सम डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एवरीथिंग विल बी डन आफ्टर ग्रेजुएशन। तो सर व्हाई नाउ? सर व्हाई नाउ? द रीजन इज रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। अगर आप ये सोचोगे कि सब्जेक्ट को आप ओवरनाइट पढ़ लो, एक रात में पढ़ लो और उसके बाद जाके सारे के सारे क्वेश्चंस कर लो, यू आर इन ए फूल्स पैराडाइज। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, अगर आप अच्छे से समझोगे नहीं, तो फिर आप इस सब्जेक्ट को नहीं कर पाओगे। 8th स्टैंडर्ड में इसलिए स्टार्ट करते हैं हम ये सब्जेक्ट, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में आपके पास थोड़ा सा कंपैरेटिवली लोड कम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, 8th स्टैंडर्ड में योर माइंड इज वेरी फ्रेश। your mind is very fresh. The way you will utilize your mind, the way you will make it to work. अगर मैं अपनी बात करूं और अगर मैं बोलूं कि नहीं, आई हैव टू स्टडी समथिंग न्यू, I won't be able to understand now because my mind has degraded little bit. हाँ, मैथमेटिक्स में आप मुझसे बात करोगे, मैथमेटिक्स में आई कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग, बट अगर कोई मुझे बोले कि भाई यू हैव टू डू ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री, I say I won't. The reason being my mind has degraded, my mind is now degrading. But your minds are still very fresh. It is one of the most fresh brains in India. तो आप अपने ब्रेन को जहां चाहो, जिस डायरेक्शन में चाहो, जैसे चाहो वैसे यूटिलाइज करो यार। Nobody will say anything. Nobody can do anything. Do it. So that is why we are studying this chapter,
दूसरी चीज ये, द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू and a person and your brother, sister, or anybody else who is going to qualify for IIM, the only difference between them is the speed. सेम अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन आप उन्हें देना, सेम अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन आप करना, he will solve it in 2-3 seconds, you will solve it in 2-3 minutes. The reason why is practice. They are doing lot of practice. On the other hand, you are not doing lot of practice, तो कोई बात नहीं, हम अभी प्रैक्टिस, ज्यादा प्रैक्टिस हम अभी करेंगे भी नहीं। हाँ, लेकिन हम तभी प्रैक्टिस करेंगे, हम तब प्रैक्टिस करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा। हम उस टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे when I am free from my load, when I am free from everything, at that moment I can do the practice. Because the first target, your first target where this exam, where this mental ability will come is after 2 years, and 2 years is a long span. आप आराम से इस सब्जेक्ट पे मास्टरी अटेन कर सकते हो। And my dear friends, in order to qualify the NTSC exam, those who have not studied mental ability, it's a history, they have never succeeded in this exam. In order to succeed in this exam, the only thing which is necessary is mental ability. So with this positive note, now I have told you both tangible and intangible benefits of studying this subject. Now with this thing in mind, let us start our discussion. Today we are going to start a chapter that is called as alphabet test. Alphabets का test, a test based upon alphabet. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अल्फाबेट टेस्ट क्या है ये? अल्फाबेट्स तो मालूम है। By alphabet test, if I try to divide this word, and if I try to understand what this word means, so this word means alphabet मतलब the collection of vowels and consonants जो कि 6 महीने की उम्र से 60 साल की उम्र तक हमें याद होता है। ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ, ठीक है। ये 26 अल्फाबेट्स होते हैं। कुछ गलत बोला क्या मैंने? No, sir. ओके, जस्ट अ मिनट। व्हाट आई वाज सेइंग कि सर हमें जो है अल्फाबेट टेस्ट की बात करनी है, तो अल्फाबेट्स तो वो 26 collection of vowels and consonants A to Z, and test means I have different conditions जहां मुझे अल्फाबेट्स के बारे में कुछ ना कुछ बताना होगा, कुछ करना होगा, क्या करना होगा देखते हैं। तो इस चैप्टर में मेरे पास बेसिकली आई कैन हैव 5 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। The first type of problem is alphabetical order. The second type of problem is letter word problem. The third type of problem is alphabetical quibble. Quibble means a collection of, quibble means जब quibble आएगा तब बात करेंगे, वैसे this is an unknown word. This is a new word for us. Next is word formation by unscrambling of the letter. And the last topic is word formation using letters of the given word. ठीक है सर, ये 4-5 चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। और बिलीव मी, दिस इज द सेम थिंग that your seniors are also studying. This is the same thing that the graduates are also studying. So this is the same thing. So let us get started. अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ABCD तो आप सभी लोगों को पता है। इस ABCD को आई विल टेल यू इन ए डिफरेंट मैनर। कैसे सर? व्हाट डिफरेंट मैनर सर? अगर ए की पोजीशन, नाउ आई विल राइट द नंबर्स आल्सो। ए की ABCD तो मुझे पता है। नाउ आई हैव नंबर्ड द अल्फाबेट्स आल्सो। तो ए का नंबर हो गया 1, बी का नंबर हो गया 2, सी का नंबर हो गया 3, डी का नंबर हो गया 4,
E का नंबर हो गया 5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, B22, W23, X24, Y25, and Z is 26. इन लेटर्स का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए. That will help you a lot in solving the problem. What I will suggest, either write it or take the screenshot of it. Ask your parents to take the printout of this. आपका जो टेबल है जहां आप बैठ के पढ़ते हो, उस टेबल के सामने इसे लगाओ और डेली दिन भर में 5 बार इसे देखो. कैसे देखना है? A1, B2, C3, D4, E5 इस तरीके से देखना है. इस तरीके से जब देखोगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी. After some time, what you will find that you are much comfortable with these things. That is first thing. That is the first task that you have to do. आगे बढ़ते हैं. Now let us come to the for the time being. जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इन चीजों को आप देख सकते हो. ए की पोजीशन क्या होती है, एल की पोजीशन क्या होती है, इन पोजीशंस को आप देख सकते हो टेबल में से या इस स्लाइड से आप इन पोजीशंस को देख सकते हो. याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इन स्लाइड्स की पोजीशन से इनको देख सकते हो. एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट in studying the questions and solving the questions. Let us move ahead. The next thing is alphabetical order. बेटा डिक्शनरी तो सभी लोगों के पास होगी. डिक्शनरी आजकल तो खैर डिक्शनरी का इतना यूज नहीं होता है, बट देयर वाज ए टाइम व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट. आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट डिक्शनरी और पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशंस आ गई हैं, बट देयर वाज ए टाइम व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट. At that time, what used to happen was the dictionary had a very important, much importance in our life. तो डिक्शनरी तो आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा. डिक्शनरी में क्या होता है सर? डिक्शनरी में क्या होता है कि डिक्शनरी has all the numbers written in sequence wise order. मतलब सीक्वेंस वाइज ऑर्डर मतलब सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले नंबर्स लिखते हैं हम लोग, फिर बी से स्टार्ट ए से स्टार्ट होने वाले नंबर्स लिख दिए, फिर बी से स्टार्ट होने वाले नंबर्स लिखे, फिर सी से स्टार्ट होने वाले नंबर्स लिखे. जो नंबर्स ए से स्टार्ट होने वाले थे, ए के बाद सबसे पहले मैंने ए से स्टार्ट होने वाले नंबर्स लिखे, फिर मैंने ए बी से स्टार्ट होने वाले नंबर्स लिखे एंड सो ऑन. अगर मैं इस तरीके से इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू इन ए सिंपल वर्ड्स, अगर मैं दो वर्ड्स को लिखूं और आपसे पूछूं कि बेटा विच वर्ड विल कम बिफोर द अनदर वर्ड, तो क्या है? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक वर्ड है आस्था, आस्था, और दूसरा वर्ड है अभिषेक, अभिषेक, तो आप मेरे को बता सकते हो कौन सा वर्ड पहले आएगा और कौन सा वर्ड बाद में आएगा? सर फर्स्ट आस्था देन अभिषेक. पहले आस्था आएगी फिर अभिषेक आएगा. पहले आस्था आएगी फिर अभिषेक आएगा. और मान लो उसके बाद कोई तीसरा वर्ड है से डैनियल, डैनियल, तो पहले आस्था आएगी फिर अभिषेक आएगा, उसके बाद फिर डैनियल आएगा. डैनियल क्यों बाद में आएगा? बिकॉज डैनियल जो है उसका नाम डी से स्टार्ट हो रहा है. आस्था भी ए से स्टार्ट है, अभिषेक भी ए से स्टार्ट है, बट आस्था हैज ए and Abhishek is AB, so AB will come after AA. That is why this will be the thing. अगर तीसरा वर्ड मैंने मान लो मैंने ले लिया अकाउंट्स, तो पहले आस्था आएगी फिर अभिषेक आएगा फिर अकाउंट्स आएगा और लास्ट में आई विल हैव डैनियल. ठीक है सर? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. हमें क्या करना है? हमें वर्ड्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है.
हमें वर्ड को सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है इन द सिमिलर वे एज दे अकर इन द डिक्शनरी। आपके स्कूल में आपके जो क्लास टीचर्स होते हैं वो आपका रोल नंबर भी नॉर्मली इसी पैटर्न से करते हैं। आपके जो स्कूल के जो क्लास टीचर्स होते हैं वो आपका रोल नंबर भी इसी तरीके से अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक इंसिडेंट याद है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड देयर वर मेनी स्टूडेंट्स ऑफ नेम्ड ऑफ ए इन माय क्लास। द नेम वाज अतुल, अमित, then one was Ankita, another was Anurag, and the third one was Animesh. तो सबसे पहले जो नंबर आता था वो आता था अमित का, बिकॉज इट वाज हैविंग ए एम। उसके बाद आता था अनिमेश बिकॉज इट वाज ए एन आई। नेक्स्ट यूज टू कम अंकिता विच वाज ए एन के। नेक्स्ट was Anurag, which was ANU, and the third was, and the last one was Atul, which was AT. मुझे बहुत खराब भी लगता था बिकॉज वेन एवर हमारे स्कूल में जो वाइवा वगैरह जो होता था दे यूज टू कॉल मी। और इनिशियली जो बच्चे जाते हैं तो उनसे उनसे बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं शुरू वालों के साथ और लास्ट वालों के साथ बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप में से किसी का नाम अगर ए से हो तो उसे पता होगा ये चीज कि दे आर बीइंग आस्क्ड वेरी टफ क्वेश्चंस। या नहीं पता होगा तो आगे आने दो सिचुएशंस पता चल जाएगा। या कभी जब कॉपीज चेक होती थी तो जिस टेस्ट में या जिस एग्जाम में अच्छा किया उसमें तो बड़ी खुशी मिलती थी कि भाई मेरी कॉपी सबसे पहले आएगी, लेकिन जिस टेस्ट में या जिस एग्जाम में खराब किया उसमें बहुत अच्छा नहीं लगता था, बहुत खराब लगता था कि यार मेरी कॉपी सबसे पहले आ जाएगी, द होल क्लास विल लाफ ऑन मी। So that was the thing. This is the dictionary order of your name. Why Animesh was at second position? Why Ankita was at third position? Because Ankita, A-N-K, comes later than A-N-I. So this is the dictionary arrangement of the question. Now you have one question. This one, you have to tell me what will be the dictionary arrangement of the words. Sign, solid, seen, and simple. What will be the dictionary arrangement of the words? Please tell me fast. How the words will occur in the dictionary, you have to tell me. बोलो यार। 3142 B option. 3142. 3142. 3142 is the option. Yes sir, B option. Yes, sir. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज सर सबसे पहले आएगा सीन, उसके बाद आएगा साइन, उसके बाद आएगा सिंपल और लास्ट में आएगा सर सॉलिड। ठीक है, वेरी गुड, हो गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज फिनिश। आगे बढ़ते इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आई होप यू गाइस कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सुनो ध्यान से क्या है यहाँ पे ये बोल रहे हैं लेटर वर्ड प्रॉब्लम। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन जो बोल रहा है वो पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड। इस वर्ड में जो वर्ड है डबल, इसमें ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर्स हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितना कि अल्फाबेट सीरीज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए और ई को लूं, अगर मैं ए और ई को लूं डबल के ए, और अगर मैं ई की बात करूं तो इन द गिवन वर्ड देयर आर 3 लेटर्स बिटवीन देम, BBL। और इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में A B C D E, there are 3 letters between the word B, A and E. So this will be one of my pair. ठीक है सर। तो इस तरीके से आपको बताना है कि हाउ मेनी सच वर्ड्स आर देयर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
2 मिनट्स हैं आपके पास, प्लीज सॉल्व इट एंड टेल मी। इसको ध्यान से सुनो। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी स्टार्टिंग में कि लेटर्स का जो नंबर होता है, हर लेटर का करस्पॉन्डिंग नंबर लिख दो और फिर देखो मैजिक। भाई डी का जो नंबर होता है भाई वो 4 होता है, ए का जो नंबर होता है वो 1 होता है, देन बी का नंबर 2 होता है, अगले बी का नंबर 2 होगा, एल का नंबर कितना होता है, जी एच आई जे के एल, एल का जो नंबर सर होता 12। है 12 होता है, और ई का जो नंबर होता है सर वो 5 होता है। ठीक है, 5। ये हो गया नंबर, हमने नंबरिंग लिख दी। नाउ आई विल स्टार्ट फॉर्मिंग द पेयर। कैसे पेयर बनाएंगे, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 4। 4 के बाद मैं फ्रंट में काउंटिंग करना शुरू करूंगा, 4 से मैं आगे काउंटिंग करना शुरू करूंगा। काउंटिंग बेटा हमेशा फॉरवर्ड आगे ही होती है, यहां से मैं 4 से 3 2 1 नहीं काउंट करूंगा, मैं 4 के बाद 5 6 7 8 ऐसे ही काउंट करूंगा। देखो 4 के बाद अगला नंबर 5 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, फिर 6 होना चाहिए, यहाँ 2 है, यहाँ पे 7 8 9। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 9 होता, जैसे मान लो यहाँ पे 9 होता, तो ये मेरा एक पेयर बन जाता। क्यों सर, क्योंकि इंग्लिश हमारे नंबर सिस्टम में 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8 देयर आर 4 नंबर्स। in the given word also there are 4 numbers between 4 and 9, so 4 और 9 का एक पेयर बन जाता मेरा। बट 9 तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे तो 5 है, तो 4 से स्टार्ट करके मुझे कोई पेयर नहीं मिला है। आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं सर और क्या पेयर मिल सकता है, आगे देखते हैं। 1, 1 के पास आओ, 1 के बाद अगला नंबर मुझे क्या मिला, 2। 1 के बाद मुझे अगला नंबर मिला 2, और नंबर सिस्टम में भी, नंबर सीरीज में भी 1 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 2 आता है। देयरफॉर दिस ए बी इज वन ऑफ माय पेयर। आगे बढ़ते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। मुझे मिला 1 के बाद जो तीसरा नंबर, चौथा नंबर मिला, वो मुझे 5 मिला। दैट मीन्स 1 5 इज ऑल्सो माई वन ऑफ माई पेयर। देयरफॉर सर ए ई इज ऑल्सो वन ऑफ माई पेयर। देखो ए और ई के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में क्या क्या आता है, बी सी डी, और यहाँ पे जो गिवन वर्ड है इसमें ए और बी के बीच में कौन 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 से अल्फाबेट्स हैं, बी बी एल। तो हियर आल्सो देयर आर 3 अल्फाबेट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट आल्सो, in this English alphabet also there are 3 letters between A and E, so this A E will also be my one of the pair। अब 2 के बाद आओ, 2 के पास आओ, 2 के बाद 3 होना चाहिए, 3 के बाद 4 होना चाहिए, 4 के बाद 5 होना चाहिए। मिल गया एक पेयर और, मिल गया एक पेयर और। सो 2 5 that is BE is also one of my pair। This BE is also one of my pair। अब हम लोग इस 2 की बात कर रहे थे, अब आगे आ जाओ। 2 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं हो सकता। 12 12 के बाद 16 होना चाहिए, यहाँ पे तो 12 के बाद 5 है, 5 तो आखिरी लेटर है, तो इसका ऐसा तो कोई पेयर होगा नहीं। अब रिवर्स काउंटिंग चालू करते हैं। 5 6 7 8 9 10, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर 6th होता यहाँ पे लेटर तो एक पेयर बन जाता, 7th होता तो 5 और 7 का एक पेयर बन जाता, 8 होता तो 5 और 8 का एक पेयर बन जाता, 9 होता तो 5 और 9 का एक पेयर बन जाता, 10 होता तो 5 और 10 का एक पेयर बन जाता, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। 12 के पास आओ, 12 13 14 15 16, सारे नंबर तो 12 से कम है, तो कोई पेयर बनने का कोई चांस ही नहीं है। 2 3 4 5 सारे, लेकिन ना 3 है ना 4 है ना 5 है, तो ये एक पेयर बनेगा नहीं। इस 2 के पास आओ, 2 3 4 बन गया पेयर, बन गया पेयर 2 3 4। तो एक अगला पेयर होगा मेरा बी डी, अगला पेयर हो गया मेरा बी डी। नाउ 1 के बाद 2, 4 तो लास्ट है, तो कोई पेयर बनेगा नहीं। देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, माय करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी more than 3। This is how the question is to be done। आप नंबरिंग करो,
ऐसे अगर आप खुद से पेयर बनाना चालू करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप कोई ना कोई नंबर को भूल जाओगे। ए बी आप बना लोगे, सर एक मिनट बेटा, ए बी आप बना लोगे, ए बी भी बना सकते हो, बीई भी बना लोगे, लेकिन बी डी आप नहीं बना पाओगे, बिकॉज बी डी इज ऑल्सो ए पेयर हियर। हाँ बोलिए। सर in second one word paradise वेट वेट there वेट is one. वेट वेट वेट, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। Now I will give you time to solve the second question, paradise. So you have 2 minutes to solve. Your time starts now. बेटा, again the process will be very simple. क्या है process? पहले सबसे पहले नंबर्स का अल्फाबेट्स का पोजीशन लिख दिया। पोजीशन लिखने के बाद now I will start counting 16 17 18 पहला पेयर मिल गया, PR is my first pair, then 19 20 21 22 23 खत्म, कोई नंबर नहीं है, नहीं होगा। 1 1 18, 1 के बाद 2 आना चाहिए, यहाँ पे 18 है। 1 2 3 4, 1 कॉमा 4 इज माई पेयर, 1 कॉमा 4 मतलब ए डी, ए डी विल बी माई पेयर। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, नथिंग इज देयर, छोड़ दो, भूल जाओ। 18 19 20 21 22 23 नहीं हो रहा है, छोड़ दो, भूल जाओ। 1 2 3 4 5, so a comma e will also be one of my pair. Okay, next 4 5 6 7 नहीं हो रहा है, 9 10 11 नहीं हो रहा है, 19 के बाद तो 20 आना चाहिए, बट यहाँ तो 5 है तो नहीं होगा, छोड़ दो। रिवर्स काउंटिंग करते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं हो रहा है, 19 20 21 22 सारे नंबर्स 19 से कम है तो कोई फायदा नहीं है। 9 10 11 12 13 14 नहीं है, 4 5 6 7 8 नहीं है, 1 2 3 4 18 19 20 1 2 16 के बाद तो कुछ है नहीं, तो देयर वोंट बी एनी पेयर। सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर इन टोटल 3 pairs, so 3 will be your answer. The correct answer of this question is 3. Okay, समझ में आई ये बात सभी लोगों को? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज number of letters skipped in between adjacent letters in the series is increasing by 1. ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उन वर्ड्स के बीच में जो नंबर ऑफ जो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स के बीच के जो लेटर्स का डिफरेंस है, that is increasing by 1. You have to tell which of the following option will be the correct option. ठीक है, तो तरीका क्या है यहाँ पे करने का? सर व्हाट इज द मेथड? मेथड ये है कि सबसे पहले हर लेटर की नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करने के बाद देख लो भाई के का नंबर क्या होता है, कोई बताएगा? 11, एम का होता है 13, पी का होता है 16, टी का होता है 20, वाई का होता है 25। जरा कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स के बीच में डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस आया 2, यहाँ पे डिफरेंस आया 3, यहाँ पे डिफरेंस आया 4, यहाँ पे डिफरेंस आया 5, हो गया। द डिफरेंस इज इंक्रीजिंग बाय 1, द डिफरेंस इज इंक्रीजिंग बाय 1, यही तो सवाल था, मुझे मिल गया डिफरेंस इज इंक्रीजिंग बाय 1, यही मुझे ऑप्शन ढूंढना था। लकीली पहला ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन, आई वोंट चेक द अदर ऑप्शंस, I don't want to waste my time. I won't check the other options. I will move ahead to the next question. क्या ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? Yes, sir. जिसको नहीं Yes, समझ में sir. आई है बेटा पूछ सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आई है बेटा पूछ सकते हैं। चलिए, all right. So my dear friends, next is alphabetical quibble. मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्विबल थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि क्विबल क्या होता है। अब वो टाइम आ चुका है कि व्हाट इज अ क्विबल। क्विबल क्या होता है दोस्त? क्विबल इज जस्ट अ
just a alphanumeric, alphabetical, alpha symbolic series. किसी भी सीरीज का जो जनरल टर्म होता है उसको हम लोग सर क्विबल बोलते हैं। एक सीरीज के जनरल टर्म के लिए, एक सीरीज के जनरल टर्म के लिए, एक सीरीज को इन जनरल रिप्रेजेंट करने के लिए द टर्म दैट आई यूज द टर्म दैट आई यूज दैट इज कॉल्ड एज द क्विबल। अब क्विबल में क्या होता है सर? क्विबल में कुछ भी हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आता है सर कि आपके पास एक सीरीज दी होगी, उस सीरीज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उन प्रश्नों का हल आपको निकालना है, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको निकालना है, ऑप्शन मार्क करना है, मार्क्स लेना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जरा आइए समझने की कोशिश करते हैं। The first question is, if the alphabet series is written in the reverse order मतलब हमने Z से चालू किया, which of the following will be seventh letter, to the left of eighth letter from your right? आपके राइट से जब आपने अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स में लिखा तो आपके राइट से जो एट्थ लेटर है, आपके राइट से जो एट्थ लेटर है, उस एट्थ लेटर के लेफ्ट में सेवेंथ लेटर कौन सा होगा? आपके राइट से जो एट्थ लेटर है, उस एट्थ लेटर के लेफ्ट में सेवेंथ लेटर कौन सा होगा? बेसिकली आई विल हेल्प यू आउट विद दिस क्वेश्चन। बेसिकली व्हाट हैपेंस माय डियर फ्रेंड, हम लोग जो कोई भी नंबर या हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। आई कॉल लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, मान लो मैंने ABCD लिखा है, यहाँ पे 4 लेटर्स लिखे हैं, तो अगर मैं बोलूं थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट विल बी B, और अगर मैं बोलूं सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट विल बी B। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सर थर्ड लेटर फ्रॉम राइट दिस विल बी B, एंड अगर मैं बोलूं सर सेकेंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू B। थर्ड लेटर फ्रॉम राइट इज ऑल्सो इक्वल टू B, सेकेंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट इज ऑल्सो इक्वल टू B। तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट का तो ये चक्कर है, पहली चीज। दूसरी चीज सर, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपका जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है दैट इज ए वेरी लेंदी अनकन्वेंशनल टाइप सॉल्यूशन। पहले उस सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का दूसरा सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, द क्लास माइट एक्सटेंड टू 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। द कन्वेंशनल मेथड ऑफ दिस सॉल्यूशन इज A लिखा, फिर B लिखा, फिर C लिखा, क्या करो मैं, हाँ ठीक है, फिर D लिखा, फिर E लिखा, फिर F लिखा, फिर G लिखा, फिर H लिखा, फिर I लिखा, फिर J K, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, A लिखा, फिर B लिखा, फिर C लिखा, फिर D लिखा, फिर E लिखा, फिर F लिखा, फिर G लिखा, H I J K L M N O P Q R S T U V, और यहाँ पे W, फिर X, फिर Y, फिर Z। इस तरीके से मेरा नंबरिंग चल रहा है, मैंने सीरीज को रिवर्स में लिख दिया। नाउ दे आर सेइंग दैट सेवेंथ लेटर टू द एट्थ लेटर फ्रॉम योर राइट। राइट से एट्थ लेटर कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा हुआ एट्थ लेटर फ्रॉम द राइट। अब इस एट्थ लेटर फ्रॉम द राइट में अब मैं इस लेटर पे खड़ा हूं यहाँ पे। अब यहां से देखो, ये तो मेरा राइट हो जाएगा, ये तो मेरा लेफ्ट हो जाएगा। इस एट्थ लेटर से सेवेंथ लेटर इन द लेफ्ट, तो सेवेंथ लेटर इन द लेफ्ट मतलब 9 1 2 3 4 5 6 7। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी
ऑप्शन नंबर सी दैट इज ओ। ठीक है सर, पहली चीज। लेकिन सर ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये तो हो गया एक तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का। एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है सर, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। क्या बोल रहे हैं, द सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, which of the following will be seventh letter to the left of eighth letter from your right। राइट से जो एट्थ लेटर होगा मेरे न्यू सीरीज का, राइट से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है ए से, तो जो एट्थ लेटर होगा सर वो मेरा ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज का भी एट्थ लेटर ही होगा। समझने की कोशिश करो, जब मैंने सीरीज को रिवर्स में लिख दिया तो भी जो मेरा राइट से एट्थ लेटर होगा वो मेरी ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज का भी एट्थ लेटर ही होगा। दैट मीन्स दैट लेटर विल बी एट्थ लेटर विच इज इक्वल टू एच। आप क्या बोल रहे हैं, सेवंथ लेटर टू द लेफ्ट, यहां से नंबरिंग मेरी इस डायरेक्शन में चल रही है, 1 2 3 4, यहां पे मेरा 8 आया, 8 के बाद सेवंथ लेटर और मुझे जाना है। बेसिकली मैं कहां पे आया, मैं 15th लेटर में आया, स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट करके मैं 15th लेटर पे आया एंड माय आंसर विल बी ओ। अगर इस क्वेश्चन में हमसे ये बोलते कि सेवंथ लेटर टू द राइट ऑफ एट्थ लेटर फ्रॉम योर राइट, अगर यहां पे बोल देते कि सेवंथ लेटर, ये बात समझ में आई कि मैं 15 पे कैसे आया, 8 + 7 मैंने कैसे किया, ये बात समझ में आई आप लोगों को, से यस और नो बोलो यार। Sir, can you please explain again? Okay, you want me to explain again? See, what I did is basically what they are saying कि सेवंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ एट्थ लेटर फ्रॉम योर राइट। आपका जो राइट से जब आपने नंबर सीरीज शुरू की है, ये जो एट्थ लेटर आया था ये क्या आया था, एच ही आया था ना। जो एट्थ लेटर आया था ये एच आया था। दिस लेटर इज सेम एज, अगर आप ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज लिखते तो भी ये लेटर तो एट्थ ही होता, ये लेटर एच ही होता। अब एच के बाद आपका जो सेवंथ लेटर है that will be 15th letter overall which is equal to O, which is equal to O। ठीक है, ऐसे समझ में आए तो ऐसे कर लो, Okay, sir. नहीं समझ में आए तो अल्फाबेट सीरीज को रिवर्स में लिख के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इससे आप सॉल्व करोगे तो द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन लिटिल क्विकर, वैसे करोगे तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस राइट और लेफ्ट का चक्कर समझ के रखना, राइट और लेफ्ट के चक्कर में फंस गए तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टॉप हियर टुडे एंड इन द नेक्स्ट क्लास